एवरीवन, मैं हूं वैभव एंड यू वाचिंग फूड अड्डा ऑन TV9 मुंबई। Well, I've just had a great time watching अवतार और ये शाम को और भी बेहतर बना सकता है कुछ अच्छा खाना। तो आइए शाम को और बेहतर बनाते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं और चेकआउट करते हैं हमारा आज का फूड अड्डा। मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ फन सिनेमा अंधेरी से और यहाँ से बिल्कुल पास में राधा अगली गली में ही है हमारा आज का फूड अड्डा। और मैंने इसलिए सुना है क्योंकि मूवी देखने के बाद आई एम सीरियसली नॉट इन अ मूड टू ट्रैवल और ड्राइव, और ये बिल्कुल नजदीक है। तो आइए कुछ अच्छा खाते हैं और चेकआउट करते हैं हमारा अभी का फूड अड्डा। तो फन सिनेमा से मुश्किल से 2-4 मिनट का वॉक करते ही मैं पहुंच गया हूँ हमारे आज के फूड अड्डा पर, उबुंटू। ये एक अफ्रीकन नेम है लेकिन ये जगह एक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट है। आइए चेकआउट करते हैं उबुंटू। तो आइए जगह का और मुआयना करते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या अलग है और क्या क्या अच्छा है यहाँ पे। बट प्रीटी ऑब्वियस कि जगह का नाम अगर उबुंटू है और अफ्रीकन थीम है इसकी, तो बहुत जाहिर सी बात है यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें दिखेंगी आपको जो आपको अफ्रीकन और ज़ुलू कल्चर का ध्यान दिलाएंगी। उबुंटू पे पूरी की पूरी नजर तो हमने मार ली और अब बात करते हैं विद द मैन बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस। जब हमने रेस्टोरेंट बनाना था तब ये कॉन्सेप्ट तो जो वर्ल्ड क्यूजीन का था, उसको हमने इलाबोरेट करके ये रेस्टोरेंट बनाया था। बट ये डेकोर वेरी साउथ अफ्रीकन, वेरी कीनिया टाइप, वेरी अफ्रीकन। Yeah, it's an African concept. Ubuntu actually means the way of life. Have you ever been to South Africa? Yeah, I've been picture reference. Yeah, I've been to Africa a couple of times. So it's a musical place. People, they're full of life. Basically, the Africans. So we had this thing in the mind, that we get a little bit of African cuisine. We can't get all the cuisine here. Okay. But certain things which are palatable to Indian taste, that we bring in here. So part of the world cuisine, we also have African, which no one else offers in Bombay. Exactly. मुंबई में मैंने सुना ही नहीं कि कहीं पे African cuisine। Right. चलिए, now I know this way of life, तो यहाँ पे खाना खा लेता हूँ। जरूर, please. What would you like to have? Let me talk to the chef कि वो क्या recommend करेंगे। Sure, absolutely. Let's talk to the chef. आज क्या स्पेशल बनाओगे मेरे लिए? आज स्पेशल आपके लिए मैं एक तो अपना जो इधर का स्पेशल है वेज और नॉन वेज में आपको इसमें दूंगा ग्रिल प्लेटर पे। Okay. Then I will give you a risotto with tandoori paneer and then lamb rack Okay. with onion jus. Then one I'll give you from the Chinese Thai, that is our chai curry is very famous. Then of course mark of our restaurant, which is the Lala Musa dal. I like the way it's served here. Yeah. In veg again we have a mix of, you have potatoes, you have broccoli, mushrooms. Mushroom, cabbage. Looks good. Try some potatoes. So the spices used, are these African? Yeah. Your preparation is African? A little different, yeah. So the baby grilled potato थोड़ा अलग है, अच्छा स्पाइसी है एंड गर्मा गर्म कोयलों के ऊपर सर्व किया जा रहा है तो और भी बेहतर लग रहा है। और साथ में अपनी इंडियन टाइप चटनी which makes the combo very Indo-African and goes really well with the grill. So veg का taste तो मैंने बता दिया. Tell people more about the non-veg. Yeah, non-veg also is a little different because the preparations are not usual Mughlai kebab. They're done a little differently. So you'll get people who are non-vegetarian and lovers of non-vegetarian will feel the difference. Chef, ये क्या है मेरे लिए? This is risotto basically Italian, but I fused it with tandoori paneer. तो अभी और क्या क्या आ रहा है? What about the non-vegetarian? और veg में और क्या क्या है? अभी lamb rack आ रहा है अभी। Then there is veg में आपको थाई करी देता हूँ इधर का speciality. और वो साग की दाल। तो Lala Musa dal. That also is there for you. I am waiting for it. It will come right away. Sure. Special African mocktail भी है. Although they have a range of mocktails and cocktails, but for a change, हम एक नई जगह पे आए हैं तो थोड़ा African try करें. Now talking about the drinks, आप क्या पी रहे हैं? Yeah, I'm having a South African red wine. It's called Pearly Bay. So it's one of the most popular wines in South Africa. Okay, and But what since am you are, I having?
it's an African Bobosa. Okay. It's a house special mocktail, and it's having guava juice, Canberry, and a dash of passion fruit flavor in it, with crushed ice and lime juice. I love it. Very, very prominent taste of guava juice and plus the fruit crush that it has. But very different. अभी तक जो मैंने रेगुलरली पिया है या रेगुलरली कहीं पे टेस्ट किया है उससे काफ़ी अच्छा है. This is a rack of lamb. Okay, so for you. It's almost selling item. So what is the preparation like? Indian, Italian, Chinese or African? It's a continental. We use New Zealand lamb chops. They're imported by an agency, and we procure it within Bombay. Some more Indian dishes जो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं और सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है और खासकर ये इसका नाम भी कुछ अलग ही है. This is lalla musa dal. लल्ला मूसा दाल यहाँ की स्पेशल दाल. इसको खाएंगे तो इट विल बी डिफरेंट. एंड सेम थिंग जो कुर्मी नान है. अच्छा, ये बहुत कलरफुल नान यार जो मैं देख रहा हूँ. कलरफुल इसलिए कि उसमें कैरेट और कैप्सिकम है, विच मुंबई में अभी कोई सर्व नहीं करता है फिलहाल. शुरुआत करते हैं दाल से. ऑल्दो ये दिखती है हमारी यूजुअल माँ की दाल या राजमा की तरह, लेकिन शायद टेस्ट में अलग हो. टेस्ट करते हैं. दाल इज सुपर्ब, स्पेशली बहुत डेफिनेट तरीके से ये राजमा या फिर दाल मखनी या माँ की दाल से बिल्कुल अलग है. अब देखते हैं कि ये नान के साथ कैसे लगती है. द कॉम्बो इज टू गुड. I love the combo. ये कुर्मी नान और ये दाल. फिर से बताइए क्या नाम है? लल्ला मूसा दाल. लल्ला मूसा दाल. वेरी नाइस. और अब पनीर की बात. सॉफ्ट पनीर है, टिक्का नहीं किया हुआ है. यूजुअल पनीर मखनी या पनीर कढ़ाई में टमाटर का टैंजीनेस ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें धनिया का भी यूज ज़्यादा है. धनिया पाउडर का बहुत प्रोमिनेंट टेस्ट है एंड इट्स डिफरेंट. इट्स गुड. ये तो हो गया मेरे वेज फूड के बारे में. व्हाट आर यू हैविंग? आई एम हैविंग पास्ता. या दिस पास्ता विद चिकन अरेबिएटा. कैसा लग रहा है? ये बहुत बढ़िया है. इसको रेड सॉस में बनाया हुआ है. वी ऑल्सो हैव पास्ता मामा रोसा सॉस, विच इज अ रेड एंड वाइट सॉस, which again in Mumbai nobody serves. ये क्या राइस है? It is brown coriander ginger rice. देखने में ये फ्राइड राइस जैसा लगता है, लेकिन थोड़ी सी टैंजी है. जिंजर और कोरिएंडर का टेस्ट भी बहुत प्रोमिनेंट है. So now you know when you come to Uganto क्या ऑर्डर करें और कैसे रिलेट करें. मैंने इतना सारा चीज़ें आपको टेस्ट करके बताया है, which I think covers the majority of dishes. Not really. आपको अगर सही महीने में अप्रिशिएट करना होगा हमारे खाने को जी, तो आपको महीने भर कंटिन्यूसली आना पड़ेगा. तो चलिए, मैंने एक ट्रेलर देख लिया जो कि बहुत धांसू रहा और अब अच्छी मूवी आना बाकी है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे. So that's Uganto for you. क्या खाना खाया है और इतने लंबे टाइम बाद एक नई कुजीन ट्राई की है एंड आई सिंपली लव्ड इट. तो आपको पता है कि अगर अफ्रीकन खाना खाना है अपार्ट फ्रॉम मल्टी कुजीन फूड दैट दे सर्व हियर, तो कहाँ पर आना है?